ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਘਨੌਰ ਤੋਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋਂ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਫਲੌਰ ਤੋਂ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਟਕਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2000 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 2002 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 2004 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। ABP ਸੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 23% ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17% ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 29%, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 23%, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 17%, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 15%, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6%, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 6% ਤੇ ਹੋਰ 4%। ਸੂਬੇ ਦੇ 6% ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15%, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17%, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 29%,
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 6%, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 23% ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 4% ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? देखो जी, हमारा मकसद एक ही है, पंजाब का भला। पंजाब का भला होना चाहिए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी, जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। केजरीवाल साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। अगले हफ्ते आऊँगा जी। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अगले हफ्ते आके ऐलान कर दूंगा। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अगले हफ्ते नाम ही पता चल जाएगा आपको। एक हफ्ता और इंतजार कर लो। जब इतनी पार्टी के किसी जब इतनी लंबी इंतजार कर ली तो एक हफ्ता और इंतजार कर लो। केजरीवाल साहब, एक मिनट ज्यादा भाई मैंने उनका कांग्रेसियों का हाथ तो नहीं पकड़ा था कि इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना, उसका उससे क्या लेना देना है। मैं देख रहा हूं आजकल चन्नी साहब चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं, केजरीवाल ने माफी मांग ली, केजरीवाल ने ऐसे कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने चन्नी साहब को ऑर्डर कर दिया अब इसको गिरफ्तार मत करना, उसका इससे क्या लेना देना है। अरे तुम दोनों मिले हुए हो, सारा पंजाब देख रहा है। एक फर्जी एफआईआर कर दी, फर्जी एफआईआर करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट होने के बाद वो आदमी घूम रहा है और ये कह रहे थे, इनके होम मिनिस्टर कह रहे थे कि मिल नहीं रहा पंजाब में। अब उन्होंने आके कह दिया जी मैं तो रोज बात करता था इनसे। उसका इससे लेना देना क्या है? उसका इससे लेना, पंजाब इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल इंपॉर्टेंट है? केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल अगर इस देश के लिए मर गया ना, पंजाब इंपॉर्टेंट, पंजाब से नशा दूर करना इंपॉर्टेंट है और पंजाब से नशा दूर आपको करके दिखाएंगे। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, आज आपको वादा करके जा रहा हूं कि हम एक मिनट जी मैडम। केजरीवाल साहब, मैडम आम आदमी पार्टी के नेता बार बार रिवायती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने भी किया, और 56 ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने टिकटें दी और आज वो रिवायती नहीं रहे, रिवायती पार्टियां बोलते हैं, और आज आम आदमी पार्टी में आते हैं तो वो रिवायती नहीं रहते। हमने किसी भी अगर गलत आदमी को टिकट दिया बताओ। मैंने तो अभी बोला चैलेंज करके, अभी मैंने चैलेंज किया, किसी को एक को नहीं किया, पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई टिकट बिकी या कोई टिकट खरीदी गई, मेरे को सबूत, और अभी नहीं कह रहा, पर्चे भरने के बाद भी अगर कोई टिकट बिकी मैं सीट खाली छोड़ दूंगा, उसको टिकट काट दूंगा उसकी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सर, कमलजीत संधू from India। एक मैडम पूछना चाह रही हैं। सर, एक सवाल है, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर काफी राजनीति भी हुई है, खासतौर पे हमने काफी पार्टियों को सुना है, आपसे सुनना चाहेंगे खासतौर पे उस समय जब हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है इंडिया टुडे आज तक ने, और ये पाया है कि लाइसेंस पंजाब पुलिस की तरफ थे, और आज एक पैनल की घोषणा भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पूरी चीजों पे किस तरह से देखते हैं आप क्या मानते हैं कि इसको किस तरह से जांच किया जाए? देखिए, आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की काफ़ी माड़ी हालत है। पिछले 4-5 महीने के अंदर कई सारे किस्से हुए हैं, बेअदबी के किस्से हुए,
लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई, ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ अगर देखी जाए तो आज पंजाब के एक आम नागरिक के अंदर एक डर है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वो ये नहीं मान रहा कि पंजाब सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए काबिल है। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि दोषियों के साथ मिली हुई है कई सारे मामलों में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा और आम नागरिक भी सुरक्षित होगा। बेअदबी के मामलों में भी सजा दिलवाई जाएगी, बेअदबी भी बंद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा। सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाएगा। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी संघर्ष चों निकली हुई पार्टी है ते किसान अंदोलन चों भी एक पार्टी निकली है। चर्चा सी कि तुहाडे नाल अलायंस होएगा कुछ सीटां दे उत्ते, गल आखिर कित्थे कि टुट गई है। हुण जे संयुक्त समाज मोर्चा लड़दा है तुहानूं लगदा है क्योंकि तुहाडे बहुत सारे ਜਿਹੜੇ एमएलए ने वो भी गल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ਨੂੰ नुकसान होएगा, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ संयुक्त समाज मोर्चा ਦੇ इलेक्शन ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान होएगा? देखो जी, हमारा मकसद एक ही है, पंजाब का भला। पंजाब का भला होना चाहिए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। केजरीवाल साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? अगले हफ्ते आऊंगा जी। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अगले हफ्ते आके ऐलान कर दूंगा। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? अगले हफ्ते नाम ही पता चल जाएगा आपको। एक हफ्ता और इंतजार कर लो। जब इतनी पार्टी के किसी जब इतनी लंबी इंतजार कर ली तो एक हफ्ता और इंतजार कर लो। केजरीवाल साहब, एक मिनट, एक ज्यादा हो मैंने उनका कांग्रेसियों का हाथ तो नहीं पकड़ा था कि इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना, उसका उससे क्या लेना देना है। मैं देख रहा हूं आजकल चन्नी साहब चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं, केजरीवाल ने माफी मांग ली, केजरीवाल ने ऐसे कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने चन्नी साहब को ऑर्डर कर दिया अब इसको गिरफ्तार मत करना, उसका इससे क्या लेना देना है। अरे तुम दोनों मिले हुए हो, सारा पंजाब देख रहा है। एक फर्जी एफआईआर कर दी, फर्जी एफआईआर करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट होने के बाद वो आदमी घूम रहा है और ये कह रहे थे, इनके होम मिनिस्टर कह रहे थे कि मिल नहीं रहा पंजाब में। अब उन्होंने आके कह दिया जी मैं तो रोज बात करता था इनसे। उसका इससे लेना देना क्या है? उसका इससे लेना, पंजाब इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल इंपॉर्टेंट है? केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल अगर इस देश के लिए मर गया ना, पंजाब इंपॉर्टेंट, पंजाब से नशा दूर करना इंपॉर्टेंट है और पंजाब से नशा दूर आपको करके दिखाएंगे। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है। आज आपको वादा करके जा रहा हूं कि हम एक मिनट जी मैडम। केजरीवाल साहब, मैडम आम आदमी पार्टी के नेता बार बार रिवायती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने भी किया, और 56 ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने टिकटें दी और आज वो रिवायती नहीं रहे, रिवायती पार्टियां बोलते हैं, और आज आम आदमी पार्टी में आते हैं तो वो रिवायती नहीं रहते। हमने किसी भी अगर गलत आदमी को टिकट दिया बताओ। मैंने तो अभी बोला चैलेंज करके, अभी मैंने चैलेंज किया, किसी को एक को नहीं किया, पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई टिकट बिकी या कोई टिकट खरीदी गई, मेरे को सबूत, और अभी नहीं कह रहा, पर्चे भरने के बाद भी
अगर कोई टिकट बिकी मैं सीट खाली छोड़ दूंगा, उसको टिकट काट दूंगा उसकी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सर, कमल जी from India। एक मैडम पूछना चाह रही है। सर, एक सवाल है। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर काफी राजनीति भी हुई है। खासतौर पे